ਨਹੀਂ ਉਦੇਸ ਤੇਰਾ। ਇੱਕ ਫਟ ਸੀ ਲੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ, ਇੱਕ ਫਟ ਸੀ ਲੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ। ਸੂਲੀ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾ ਜਿੰਦ ਖਿਤਵਾਰ, ਸੂਲੀ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾ ਜਿੰਦ ਖਿਤਵਾਰ। ਸੰਗ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਦੇਸ ਤੇਰਾ। ਦੇਸ ਬੜੀ ਦੂਰ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਦੇਸ ਤੇਰਾ। ਆਮੀਨ। आमीन आमीन। ब्रदर आसिफ, खुदावंद आपको आपके घराने को बहुत बरकत दे। बहुत खूबसूरत गीत गाया, और सचमुच हम लोग अभी जो वक्त गुजार रहे हैं इस दुनिया में है, ये देश हमारा नहीं है, हम सब यहाँ पर मुसाफिर हैं, और हमारी जो अपनी मंजिल है वो हमारे खुदावंद के पास ही है। लेकिन जब तक हम यहाँ पर हैं, खुदावंद हम सबकी हिफाजत करे। और अब हमारे साथ सिस्टर सिंथिया हैं, उन्होंने लिखा है। सिस्टर प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। और बहुत खुदावंद ने आपको भी खूबसूरत आवाज दी है, हम सब सुनेंगे खुदावंद की प्रस्तिश जो भी आज आप करने को जा रही हैं। खुदावंद की प्रस्तिश में गीत गाएंगे। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, वो जंग कदी नहीं हारदे, वो जंग कदी नहीं हारदे, वो जंग कदी नहीं हारदे, वो जंग कदी नहीं हारदे। जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा, जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा, वो जंग कदी नहीं हारदे, वो जंग कदी नहीं हारदे। सोचा पावे घेर लैन ओदे ममसवानू, घाट विच ठोक देन ओदे जंग जुआनू। सोचा पावे घेर लैन ओदे ममसवानू, घाट विच ठोक देन ओदे जंग जुआनू। मदद जिन्ना दी करदा यहोवा, मदद जिन्ना दी करदा यहोवा, वो जंग कदी नहीं हारदे, वो जंग कदी नहीं हारदे। जिन्ना च यहोवा दा रुचे वसदा, उन्हां को हर एक दुश्मन जे नसदा। जिन्ना च यहोवा दा रुचे वसदा, उन्हां को हर एक दुश्मन जे नसदा। जिन्ना दिलां विच वसदा यहोवा, जिन्ना दिलां विच वसदा यहोवा, वो जंग कदी नहीं हारदे, वो जंग कदी नहीं हारदे, वो जंग कदी नहीं हारदे, वो जंग कदी नहीं हारदे। यसु दे दीवाने अनु कौन ललकारेगा, करेगा जो जुर्रत तो मौत नु पुकारेगा। यसु दे दीवाने अनु कौन ललकारेगा, करेगा जो जुर्रत ओ मौत नु पुकारेगा। हथ जिन्ना दा फड़दा यहोवा, हथ जिन्ना दा फड़दा यहोवा, वो जंग कदी नहीं हारदे, वो जंग कदी नहीं हारदे, वो जंग कदी नहीं हारदे,
وہ جنگ کبھی نہیں ہار دے جنا آگے آگے چلدا یہووا جنا آگے آگے چلدا یہووا وہ جنگ کبھی نہیں ہار دے وہ جنگ کبھی نہیں ہار دے آمین 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 سسٹر، بہت خوبصورت آواز میں آپ نے خداوند کی حمد کی، اس کی پرستش کی، اور سچ ہے کہ جن کی جنگ وہ لڑتا ہے وہ کبھی وہ جنگ نہیں ہارتے ہیں، کیونکہ ان کا مددگار ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب اس کا ہاتھ ہمارے اوپر ہوتا ہے تو ہمیں کبھی بھی شکست نہیں ہوتی ہے، وہ فتح مند خداوند ہے اور ہمیں بھی فتح نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اب ہمارے ساتھ بھائی وقاص اشرف ہے، انہوں نے لکھا ہے، اور میں بھائی وقاص پلیز آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، اور آج کا جو بھی گیت زبور آپ کو خداوند کی طرف سے ملا ہے ہم سب کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ ہم سب سن کر اس سے برکت پا سکیں۔ آمین آمین۔ آپ سب کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع بخشا کہ میں بھی اپنے ہونٹوں کا نذرانہ اپنے خدا کی حضوری میں رکھوں، اور بے شک کلام مقدس کی ہر بات سے ہم برکت پاتے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ اس کو سننے سے ہم سب بہن بھائی جتنے بھی یہاں پر خدا کے خادم ہیں سب برکت پائیں گے، کیونکہ خدا کا کلام قدرت سے کام کرتا ہے۔ تو تسلی دا چشمہ یہوہ یری، تو تسلی دا چشمہ یہوہ یری، میں جد بھی پکارا میں جد بھی پکارا تو سندا میری، تو تسلی دا چشمہ یہوہ یری، تو تسلی دا چشمہ یہوہ یری، جیڑا روگی تیرے کول ایک باری آ گیا، او بیماریاں تو چھٹ کے رہائی پا گیا، جیڑا روگی تیرے کول ایک باری آ گیا، او بیماریاں تو چھٹ کے رہائی پا گیا، تو تے فضلا دے نال، تو تے فضلا دے نال او دی جولی بڑی، تو تسلی دا چشمہ یہوہ یری، تو تسلی دا چشمہ یہوہ یری، پاوے گندیاں رواں دے لشکر ہوون تیری اگ نال سڑ کے اتارے مرن، پاوے گندیاں رواں دے لشکر ہوون تیری اگ نال سڑ کے اتارے مرن، کر دیندی اے تباہ کر دیندی اے تباہ تیری اگ دی جڑی، تو تسلی دا چشمہ یہوہ یری، تو تسلی دا چشمہ یہوہ یری، تیرا خون میری ہر دم حفاظت کرے، میری آواز تیری ستائش کرے، تیرا خون میری ہر دم حفاظت کرے، میری آواز تیری ستائش کرے، میرے گیتاں دے وچ میرے گیتاں دے وچ تیری رچنا بڑی، تو تسلی دا چشمہ یہوہ یری، تو تسلی دا چشمہ یہوہ یری، میں جد بھی پکارا میں جد بھی پکارا تو سندا میری، تو تسلی دا چشمہ یہوہ یری، تو
تسلی دا چشمہ یہوہ یری. آمین. آمین آمین برادرز، بہت خوبصورت آواز میں آپ نے گیت گایا، تو تسلی کا چشمہ یہوہ یری. بے شک وہی تسلی کا سرچشمہ ہے، اور جب ہم اس کے حضوری میں ہوتے ہیں، اس کے قدموں میں ہوتے ہیں، تو ہمیں بڑی تسلی ہوتی ہے کہ ہم نے اب اس سے دعا مانگ لی ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں تسلی ملتی ہے. اب میں دعوت دوں گی. تے سکھ سک گئی ہے دل والی ترتی تے سکھ سک گئی ہے، پئیاں نے ترڑا گل مک مک گئی ہے، پئیاں نے ترڑا گل مک مک گئی ہے. یسو ایسا معجزہ وہاں، یسو ایسا معجزہ وہاں، تے پاک رودا ہڑ جاوے آ، تے پاک رودا ہڑ جاوے آ. لبے مینوں زندگی دا کوئی نہ نشان، لبے مینوں زندگی دا کوئی نہ نشان، مل دیاں ہڈیاں تے وانگ جہان، مل دیاں ہڈیاں تے وانگ جہان. روح تے پھونک دے ذرا، روح تے پھونک دے ذرا، تے پاک رودا ہڑ جاوے آ، تے پاک رودا ہڑ جاوے آ. دل والی دھرتی تے سکھ سک گئی ہے، دل والی دھرتی تے سکھ سک گئی ہے، پئیاں نے تڑیڑا گل مک مک گئی ہے، پئیاں نے تڑیڑا گل مک مک گئی ہے. زندگی تے پانی باجو موت مینوں دس دی، زندگی تے پانی باجو موت مینوں دس دی، تیرے باجو یسوع تڑیڑ نہیں بجھنی، تیرے باجو یسوع تڑیڑ نہیں بجھنی. جے تو جاویں مکھڑا وہاں، جے تو جاویں مکھڑا وہاں، تے پاک رودا ہڑ جاوے آ، تے پاک رودا ہڑ جاوے آ. دل والی دھرتی تے سکھ سک گئی ہے، دل والی دھرتی تے سکھ سک گئی ہے، پئیاں نے تڑیڑا گل مک مک گئی ہے، پئیاں نے تڑیڑا گل مک مک گئی ہے. یسوع ایسا معجزہ وہاں، یسوع ایسا معجزہ وہاں، تے پاک رودا ہڑ جاوے آ، تے پاک رودا ہڑ جاوے آ. آمین. آمین آمین. گاڈ بلیس یو برادرز. اب ہم سب اپنے آپ کو تیار کریں گے خداوند کے زندہ کلام کے لیے. اس کا میٹھا کلام، اس کی بابرکت باتیں، جو اس کا زندہ کلام ہم سب کے لیے، ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. آئیں عزیزو اس کو سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں خداوند کے منصور کے لیے، خداوند کے خادم کے لیے. آج کے خداوند کے خادم، خداوند کے منصور ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر نشان اکرم. میں ریکویسٹ کروں گی کہ بھائی البرٹ فضل ہمارے ساتھ ہیں، وہ اس دعا میں ہماری رہنمائی کریں کہ خداوند اپنے خادم کو آج زندہ کلام سے بھر کے ہم سب کے لیے جو ہمارے حصے کے لیے آج ہے وہ ہمارے ساتھ وہ شیئر کریں، تاکہ ہم اپنے اپنے حصے کی روحانی غذا بٹور سکیں اور برکات حاصل کر سکیں. جی بھائی البرٹ فضل پلیز. شکریہ سسٹر جی. آئیے ہم اپنے ساروں کو جھکائیں، پیار سے خداوند زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر تیرے نام کی حمد و تمجید کرتے ہیں. تو جو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تیری وفا تیرے خادم کریے خدا تیرے منصور کریے خدا تجھ سے التجا کرتے ہیں. تیرا پاک ان کی محفاظ کرے، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے تلے تک مسا کر خدا لفظوں کی ترتیب عطا کر، جو بھی وہ بولے خدا تیری مرضی کے مطابق ہو. خدا آج
جو بھی وہ پاک کلام لے کے آئے خدا ہماری زندگیوں کے لیے پھلدار مؤثر ہو خدا. ان باتوں کو خدا محض ہم سن کر بھول نہ جائے بلکہ اپنے دلوں کے خدا تختیوں میں لکھیں تاکہ ہمارے دلوں میں جان پکڑے 30 60 100 گنا پھل لا کر تیری مرضی کو پورا کرنے والے ہوں. خدا حاضری جماعت کے ساتھ ہو، ایک ایک کو برکت دے. خدا تیرے لوگ ہیں تجھ سے پیار کرتے ہیں خدا، جب کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر تیرے لیے آتے ہیں. خدا تو ان کے ساتھ ہو، بڑی مدد کر. اور خاص کر خدا اپنی بہن نگت کے لیے خدا جو میٹنگ کو پرزائڈ کر رہے ہیں خدا بڑی برکت دے. اس خاندان کو اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر. خدا تو ہماری جاگو سو قبول کر. سب کچھ مان لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین. آمین. بھائی البرٹ، خداوند آپ کو آپ کے گھرانے کو بہت برکت بخشے اور آپ اسی طرح اس کی حضوری میں اور زیادہ بڑھیں اور اس کے نام کو عزت اور جلال بخشتے رہیں. میں بڑی عزت اور احترام سے دعوت دوں گی ڈاکٹر نشان اکرم صاحب کو کہ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور آج کی روحانی غذا جو آپ کو خداوند سے ہم سب کے لیے ملی ہے وہ ہم سب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہم سب اس روحانی غذا کو سیر اور آسودہ ہو کر اس کا شکر ادا کر سکیں اور برکات حاصل کر سکیں. میری طرف سے میرے سارے بہن بھائیوں کو اسلام قبول ہو. ایک بار پھر میں اپنے خدا کا شکر گزار ہوں جس نے یہ مجھے شرف بخشا کہ میں آج شام پھر اپنے لوگوں کے ساتھ خدا کا کلام شیئر کر سکتا ہوں، اور خاص طور پر اپنی یہ چھوٹی سی ٹیم جو اس پروگرام کو چلا رہی ہے ان کا شکر گزار ہوں کہ جو بار بار مجھے موقع فراہم کرتے ہیں تاکہ میں ان کے ساتھ خدا کا کلام بانٹ سکوں. سو میرے عزیزو، آج شام اس سے پہلے کہ میں کلام شروع کروں میں آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور آپ سب اس سوال کے جواب سے اچھے طریقے سے واقف ہیں، لیکن بعض اوقات انسان ہوتے ہوئے کبھی کبھار ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے مہنگی ترین چیز کون سی ہے؟ اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی پر غور کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں. ہیلو، کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم اگر اپنی روزمرہ کی زندگی پر غور کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم صبح سے لے کر شام تک اپنی دنیاوی چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ جب میں پاکستان میں تھا تو روز بروز اپنی تھوڑی سی کمائی میں سے جو ہم کماتے تھے سوچتے رہتے تھے کہ ہم کس طرح ہم اپنی کپڑوں کی شاپنگ کریں گے، کس طرح ہم اپنے سبزیوں کا بجٹ بنائیں گے. روز بروز ہم اپنی دنیاوی چیزوں پر غور کرتے تھے اور اپنے فائنینشیل ریسورسز پر غور کرتے تھے، اپنی انکم پر غور کرتے تھے اور اپنے اخراجات پر غور کرتے تھے، کیونکہ ہم دیکھتے تھے کہ ہماری انکم کم ہے اور اس دنیا میں مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو اگر میں وہ وقت اور آج کا وقت کمپیئر کروں تو مہنگائی کئی درجے بڑھ کر آگے نکل چکی ہے. ہر شخص اس دنیا میں پریشان ہے، نہ کہ صرف پاکستان میں، نہ صرف زمبابوے میں، نہ ہی امریکہ میں، بلکہ پوری دنیا میں مہنگائی سے لوگ تنگ آ چکے ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. سو میرے عزیزو، جب ہم اپنی دنیاوی چیزوں پر غور کرتے ہیں تو آپ سوچیں گے کہ شاید کپڑے جو ہیں وہ بہت مہنگے ہو گئے ہیں. شاید آپ سوچتے ہوں گے کہ اگر ہم جوتے خریدنے جائیں تو وہ بہت مہنگے ہو گئے ہیں. اگر آپ روزمرہ کی خوراک خریدنے جائیں تو آپ سوچتے ہوں گے کہ کھانا مہنگا ہوتا جا رہا ہے. سو میرے عزیزو، اگر ہم بچوں کی تعلیم پر توجہ دیں تو ان کی تعلیم، ان کی فیسیں زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہیں،
यानी कि जिस तरफ भी जाएं हमें महंगाई नजर आती है। तो अगर हम इन सारी चीजों को कंपेयर करें और गौर करें तो हमें देखना है कि इस दुनिया में सबसे महंगी तरीन चीज कौन सी है। सो मेरे अजीजों, आओ आज हम सब मिलकर इस बात पर गौर करें कि दुनिया में सबसे महंगी तरीन चीज कौन सी है। सो मेरे अजीजों, जब मैं इस बात पर गौर कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आई, और वो बात यह है कि गुनाह जो है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। वो सबसे महंगी तरीन चीज इस दुनिया में है। अगर आप खाना कंपेयर कर लें, अगर आप सोना कंपेयर कर लें, कपड़े कंपेयर कर लें, दुनिया की कोई चीज भी कंपेयर कर लें, लेकिन सिन की, गुनाह की कीमत जो है वो सबसे ज्यादा है। अगर आज आप इस बात पर गौर करें तो आप जरूर इस बात को समझेंगे और मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि गुनाह की कीमत सबसे महंगी है। तो जब हम गुनाह पर गौर करते हैं तो हम इंसानी दिमाग पर गौर करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग इतना कैपेबल है, उसमें इतनी खासियत है। जिस तरह हम किचन पर गौर कर लें, यानी कि इंसान होते हुए हमारे घरों में एक छोटा सा किचन होता है। उस किचन में हम सारा खाना पीने की चीजें जितनी हैं वो स्टोर करते हैं, और उसके साथ साथ उसमें एक सिंक भी होता है। अगर हमारे घर में कोई सब्जी आ जाती है, कोई ऐसी चीज आती है जिसको हम धोते हैं, साफ करते हैं, और उस सिंक में गंद या कचरा जमा हो जाता है, तो मेरे अजीजों जब पानी चलाया जाता है तो वो सारे का सारा गंद बाहर चला जाता है। तो इसी तरह हमारा दिमाग, हम अपने दिमाग पर गौर करें, जैसे हम इस दुनिया में जिंदगी बसर कर रहे हैं तो हमारे दिमाग भी एक अमेजिंग चीज है। इस दुनिया में जो कुछ भी आप देखते हैं वो आपके दिमाग में स्टोर होता जाता है। तो इसलिए मेरे अजीजों, हमें बहुत केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि आप सोचते होंगे हमारे दिमाग में स्टोर करने वाली चीजें तो हैं, लेकिन हम इसको, ये जो गंदी चीजें, ये जो कचरा, जैसे सब्जियों का कचरा, वो तो हम पानी के जरिए धोकर बाहर फेंक देते हैं, लेकिन अपने दिमाग को किस तरह साफ करेंगे? उसमें तो कोई ऐसी डिस्पोजल चीज नहीं है, कोई ऐसा बैग नहीं है जिसमें हम गंद इकट्ठा कर लें और निकाल के बाहर फेंक दें। तो मेरे अजीजों, हमें अपने दिमाग पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि मैं कल ही शाम इस बात पर गौर कर रहा था। हमारे किचन में जब सब्जियां धुई जा रही थी और उसके बाद जो कचरा था उसको एक गार्बेज के टिन में डाल के बाहर फेंक दिया गया था, तो आसानी से किचन साफ हो गया था। लेकिन हमें अपने दिमाग को किस तरह साफ करना है, क्या करना है कि हमारा दिमाग जो दुनियावी चीजें देखता है उसको किस तरह साफ करें। मेरे अजीजों, सबसे जरूरी बात जो है अपने दिमाग को साफ करने के लिए, क्योंकि हमें, जब कंप्यूटर की एग्जांपल लेता हूं, जब हम कंप्यूटर पर बैठते हैं तो हमें अपने दिमाग को इस्तेमाल करने की जरूरत है, ताकि हम कहीं गलत वेबसाइट पे क्लिक ना कर बैठें। जो भी हमारा दिमाग देखेगा वो हमारे दिमाग में सेव हो जाता है। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो मेरे अजीजों, जब हम दिमाग पर गौर करते हैं, जो गंदी चीजें हम देखते हैं, जो गंदी चीजें हम सुनते हैं, वो हमारे दिमाग में सेव होती जाती हैं। हम जितनी मर्जी कोशिश करें उसको छोड़ने की, वो डिम हो सकती हैं, मध्यम हो सकती हैं, लेकिन वो कंप्लीटली खत्म नहीं हो सकती। क्योंकि जब भी आपकी नजर पड़ेगी किसी चीज पर, अगर आपने वो देखी है तो वो फौरन आपको याद आ जाएगी। तो इसलिए बहुत मुश्किल है, जो चीजें आपके दिमाग में आ जाती हैं उनको भूलना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे अजीजों, हमारे पास एक उम्मीद है, और वो कौन सी उम्मीद है? वो हमारा यीशु अल मसीह हमारी उम्मीद है। हम सब ईमान रखते हैं कि एक दिन आने वाला है जब हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह इस दुनिया में दोबारा वापस आएगा, और हम सब जब उसके साथ
जिंदा होंगे, जो मुर्दे हैं वो जिंदा होंगे, और जो वो जिंदा हैं वो उसको वेलकम के लिए तैयार खड़े होंगे। मेरे अजीजों, उस वक्त वो सारी गंदी चीजें, वो सारी चीजें जो आप डिस्पोज नहीं कर सके, उस वक्त वो कंप्लीटली खत्म हो जाएंगी जब हम अपने खुदावंद यीशु मसीह को देख लेंगे। सो मेरे अजीजों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छी से अच्छी चीजें देखें और दुनियावी चीजों को छोड़कर उनसे किनारा करें, ताकि वो हमारे दिमाग में ना आए और ना हम सोचें और ना हम उनको अमल में लाएं। तो मेरे अजीजों, हमें खुदावंद यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है, क्योंकि उसके पास आकर अपने गुनाह उसके हाथ में देने की जरूरत है। हमारा दिमाग तो उन्हें कंप्लीटली साफ नहीं कर सकता, उन्हें बिल्कुल रेज नहीं कर सकता, उन्हें मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर सकता, लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास इतनी पावर है, जब वो हमें देखेगा और हम उसको देखेंगे और वो सारी की सारी गंदी चीजें दूर चली जाएंगी, और उसके बाद कोई गंदी चीज हमारे दिमाग में नहीं होगी। सो मेरे अजीजों, जब हम अपने खुदावंद यीशु मसीह पर गौर करते हैं, जब हम अच्छी से अच्छी चीजें अपने आप को दिखाते हैं, हम क्वालिटी स्पिरिचुअल थिंग्स जो है वो अपने दिमाग को दिखाते हैं, तो गंदी चीजें मदम होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन वो खत्म नहीं होती। तो खत्म वो उस वक्त ही होंगी जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह निस्सिंगे की आवाज के साथ फिर दोबारा हमें नजर आएगा, और वो सारी चीजें जाती रहेंगी। हमारा दिल, हमारा दिमाग बिल्कुल नया होगा। मेरे अजीजों, हमें खुदावंद यीशु मसीह को तकते रहने की जरूरत है, उस पर गौर करने की जरूरत है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर गौर करते हैं तो हमें उसकी सलीब नजर आती है, क्योंकि हमें अपने सारे गुनाह उसको देने हैं, क्योंकि उसने हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर जान दी। मेरे अजीजों, कोहे कलवरी पर अपनी जान देकर हमें बचाया है। मेरे अजीजों, अगर आज जब हम कोहे कलवरी उस सलीब पर गौर करते हैं तो हमें क्या गौर करते हैं? जब वो जुमा आता है तो हम उसको गुड फ्राइडे कहते हैं, जिस दिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह उस सलीब पर चढ़ा और उसने अपनी जान कुर्बान की, हम उसको गुड फ्राइडे कहते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के लिए वो गुड फ्राइडे नहीं था, क्योंकि उस दिन उसने जान दे दी थी। मेरे अजीजों, हमारा कोई बहन भाई, कोई दोस्त अगर किसी दिन इस दुनिया से चला जाता है, हम उसको अच्छा दिन नहीं कहते, क्योंकि वो हमारे लिए बुरा दिन होता है। मेरे अजीजों, हमारे लिए वो अच्छा दिन, अच्छा फ्राइडे था, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपनी जान कुर्बान की और हमें बचाया। मेरे अजीजों, जब हम इस सलीब की कहानी को याद करते हैं, हम इस पर गौर करते हैं, हम देखते हैं कि ये सलीब की कहानी हमें याद दिलाती है, क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा तो वो अकेला नहीं था। अगर आप लूका रसूल की इंजील उसका 23 बाब उसकी 32वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक पढ़ें तो आपको वहां मुकम्मल तौर पर वो सारी की सारी कहानी याद आ जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह सलीब पर अकेला नहीं था, उसके साथ दो और शख्स थे, गुनाहगार शख्स थे, दो बदकार शख्स थे। एक उसके सीधे हाथ की तरफ था और दूसरा उसके उल्टे हाथ की तरफ था, और खुदावंद यीशु अल मसीह उनके दरमियान में मौजूद था। मेरे अजीजों, जब हम इस कहानी पर गौर करते हैं तो हमें 3 सलीबें नजर आती हैं। एक सलीब नहीं, वहां 3 सलीबें थी, और एक खुदावंद यीशु अल मसीह नहीं बल्कि 3 आदमी नजर आते हैं। क्योंकि अगर हम उस सीन पर गौर करें, अगर ये पूरी कहानी को आप गौर से पढ़ें तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह और उसके साथ 2 और क्रिमिनल भी थे जिन्होंने सलीब पर जान कुर्बान की। तो मेरे अजीजों, हम 3 सलीबों को देखते हैं और 3 आदमियों को देखते हैं, और वो तीनों के तीनों डिफरेंट, यानी कि मुख्तलिफ मौत सलीब पर मरे, यानी वो तीनों मरे लेकिन फर्क फर्क रंग में। तो मेरे अजीजों, आज अगर हम इस कहानी पर गौर करें तो हम देखते हैं हमें सच्चाई ढूंढनी है कि वो 3 शख्स सलीब पर मरे, तीनों ने सलीब पर जान कुर्बान की, लेकिन उन तीनों का सलीब पर मरना टोटली फर्क था।
हर एक का फर्क था। सो आइए हम सब मिलकर लूका रसूल की इंजील उसका 23वां बाब और उसकी 39वीं आयत पर गौर करें तो हम देखते हैं कि जो पहला क्रिमिनल था वो कौन सी मौत मरा। सो मेरे अजीजों, हम देखते हैं, अगर आप रोमियो की किताब में देखें उसका 6वां बाब और उसकी 32वीं आयत, तो वहां पर कुछ यूं लिखा है कि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। जब इंसान गुनाह करता है तो उसकी मजदूरी जो है वो मौत है। तो जब हम पहले बदकार पर गौर करते हैं, पहले क्रिमिनल पर, पहले चोर पर, थीफ पर गौर करते हैं, उसकी जिंदगी पर गौर करते हैं, तो वो कौन सी मौत मरा? मेरे अजीजों, जब हम इस कहानी पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि वो क्रिमिनल जो सलीब पर लटका हुआ था और यीशु मसीह को तंज कर रहा था कि तू अपने आप को खुदा का बेटा कहलाता है, तू यीशु मसीह कहलाता है, अपने आप को बचा और हमें भी बचा। मेरे अजीजों, वो खुदावंद यीशु मसीह पर तंज कर रहा था। उसने तौबा नहीं की बल्कि उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की अपने गुनाहों के लिए। अपने गुनाहों के लिए वो मर गया। और वो सिर्फ ये नहीं कि वो सलीब पर मर गया, बल्कि उसने कौन सी मजदूरी पे की? उसने सिर्फ ये दुनियावी जिंदगी नहीं बल्कि अब्दी जिंदगी भी वो खो बैठा, क्योंकि वो मसीह में नहीं मरा था। उसने हमेशा के लिए अपने आप को खत्म कर लिया, क्योंकि उसने गुनाह भरी जिंदगी बसर की और गुनाह की मजदूरी मौत, और वो मौत उसको सलीब पर आई और वो हमेशा हमेशा के लिए मर गया। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि उस क्रिमिनल की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। और मेरे अजीजों, आज अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करें और इस क्रिमिनल की जिंदगी पर गौर करें, यह क्रिमिनल खुदावंद यीशु मसीह के कितना करीब था। जैसे इस कहानी में हमने पढ़ा और आप सब भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर उनके दरमियान में था और एक क्रिमिनल दाहिने हाथ की तरफ था और दूसरा लेफ्ट हाथ की तरफ था। सो मेरे अजीजों, जब हम उनके हाथों पर गौर करते हैं, जब वो सलीब पर तीनों चढ़ाए गए थे, तो अगर हम यीशु मसीह को दरमियान में देखते हैं और दूसरी सलीबों को देखते हैं, तो उनके दरमियान को जो वक्फा था वो बहुत ज्यादा नहीं था। वो शायद 12 या 15 इंच का वक्फा था। उनके हाथ ऑलमोस्ट एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। वो दोनों क्रिमिनल खुदावंद यीशु मसीह के बिल्कुल करीब थे। खुदावंद यीशु मसीह पर लान तान कर रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह के साथ बातें कर रहे थे, लेकिन इतना करीब होने के बावजूद वो अब्दी जिंदगी मर गया और हमेशा की जिंदगी खो बैठा। मेरे अजीजों, उसका चांस इस दुनिया में से खत्म हो गया और वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। इसी तरह अगर हम दूसरे क्रिमिनल की जिंदगी पर गौर करें तो हम देखते हैं कि दूसरा क्रिमिनल जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है। जब उसके दोस्त दूसरे क्रिमिनल ने खुदावंद यीशु मसीह पर लानतन की और वो भी उसके साथ ही था, लेकिन अजीजों, जब ये बातें हो रही थी तो दूसरे ने कहा, हम तो अपनी मौत मर रहे हैं, लेकिन ये जो हमारे साथ है इसने तो कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके वसीला से, जिसकी वजह से इसको सलीब पर कुर्बान किया जाता, जिसकी वजह से इसको सलीब पर चढ़ाया जाता। तो उसने खुदावंद के सामने मिन्नत मांगी और खुदावंद यीशु मसीह को कहा कि मेरे आका, जब तू अपनी बादशाह में आए तो मुझे याद कर। तो मेरे अजीजों, जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो हमें याद आता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसके साथ वादा किया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। कितनी अजीब बात है। एक शख्स
जो पहला क्रिमिनल सारी उम्र गुनाह भरी जिंदगी गुजारी, और दूसरा शख्स उसने भी सारी उम्र गुनाह भरी जिंदगी गुजारी, लेकिन एक ने सलीब पर चढ़कर खुदावंद यीशु मसीह को अपना मालिक कबूल कर लिया। जब उसने उसको अपना मालिक कबूल कर लिया तो खुदावंद खुदा ने उसकी सारी गलती कताइयों को माफ कर दिया और उसे कहा कि तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे अजीजों, आज हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के कितने करीब हैं और कितने दूर हैं। अगर हम नजदीक हैं तो कितने नजदीक हैं। अगर हम नजदीक भी हैं, नजदीक रहकर भी क्या हम बचाए जाएंगे? क्या हमें माफी मिल जाएगी? और क्या हम उस चोर की तरह, उस क्रिमिनल की तरह इस दुनिया में मौत मरेंगे? ना कि सिर्फ ये मौत, बल्कि अब्दी मौत। आज वक्त है कि हम अपने आप को अपने खुदावंद खुदा के हाथों में दें और उस क्रिमिनल की जिंदगी से सीखें जिसने सलीब पर चढ़कर आखिरी लम्हों से खुदावंद खुदा को कबूल कर लिया और उसको वादा दिया गया कि तू मालिक के साथ फिरदौस में होगा। मेरे अजीजों, हम इन दोनों क्रिमिनल्स की जिंदगी पर गौर करते हैं। दोनों ने सारी जिंदगी गुनाह भरी जिंदगी गुजारी, दोनों को सलीब पर चढ़ाया गया, लेकिन कौन सी ऐसी बात थी जो इस पर काम कर गई? मेरे अजीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था, उसके साथ दो क्रिमिनल को सलीब पर चढ़ाया गया था। वो दोनों क्रिमिनल खुदावंद यीशु मसीह पर लानतन कर रहे थे। ना कि सिर्फ वो दोनों क्रिमिनल, बल्कि जो नीचे सिपाही, सोल्जर और दूसरे लोग जितने इकट्ठे हुए थे, सब खुदावंद यीशु मसीह पर लानतान कर रहे थे। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त उनके लिए क्या कहा। जब ये सारी बातें चल रही थी, कुछ लोग मसरूफ थे उसके कपड़े बांटने में, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जब उसने देखा, उनकी बातों को सुना और उसने सिंपल कहा, ऐ बाप, इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे अजीजों, वो दूसरा चोर, वो दूसरा क्रिमिनल, जब उसने खुदावंद यीशु अल मसीह का पैगाम सुना, खुदावंद यीशु अल मसीह की आवाज को सुना और उसके मैसेज को सुना कि ऐ बाप, इन्हें माफ कर देना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सो मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम उस दूसरे चोर की जिंदगी, दूसरे थीफ की जिंदगी पर काम कर गया और उसने अपनी जिंदगी अपने मालिक के हाथ में दे दी और वो बचाया गया। अगर हम उसकी जिंदगी पर गौर करें, हम देखते हैं कि वो शख्स सलीब पर था, वो मरने वाला था, बिल्कुल मरने वाला था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में दे दी, उसको अपना आका कबूल कर लिया। मेरे अजीजों, आज वक्त है कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें और इस चोर से, इस थीव से आज हम सीखें कि अगर हम अपनी जिंदगियां अपने मालिक के हाथ में दे दें तो हम खुदावंद के फजल से जरूर बचाए जाएंगे। खुदावंद की मेहरबानी से, उसके करम से, उसकी ग्रेस से हम जरूर बचाए जाएंगे। उस चोर ने आखिरी पैगाम सुना और उसने अपनी जिंदगी तब्दील कर ली और वो बचाया गया। आज मेरे और आपके पास ये वक्त है कि हम उस चोर से सबक सीखें और अपनी जिंदगियां खुदावंद के हाथ में दे दें, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा आखिरी वक्त कब आने वाला है, कब हम इस दुनिया से जाने वाले हैं। हम अपनी माजी की जिंदगी को देख सकते हैं, हम अपनी मौजूदा जिंदगी को देख सकते हैं, हम क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हैं, हम कितने खुदा से दूर थे, हम कितने खुदा के नजदीक हैं। आज हमें क्या करने की जरूरत है
کہ वो वादा जो चोर के साथ किया गया वो आज हमारे साथ भी हो कि हम खुदा उनके साथ फरदौस में होंगे। हम उस चोर की जिंदगी से सबक सीखें जिसने सलीब पर सारी उम्र भी गुनाह किया और सलीब पर चढ़कर भी गुनाह किया और लास्ट लम्हे पर भी अपने मालिक को ना पहचाना और वो जिंदगी की वो गुनाह की सजा मौत उसने खुद भुगत ली। अपने गुनाहों की मजदूरी वो खुद अपनी मौत बनकर सलीब पर चढ़ गया और वो मर गया और वो हमेशा हमेशा के लिए मर गया। मेरे अजीजों, आज हमारे पास वक्त है कि हम इन दोनों छोरों की जिंदगी से गौर करें और उनसे सबक सीखें और अपने खुदावंद यीशु अल मसीह की जिंदगी पर गौर करें और अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें एक्सपोज करें, अच्छी चीजें अपने आप को दिखाएं, रूहानी चीजें दिखाएं, दुनियावी चीजों से भागें और खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करें जिसने मेरी और आपकी खातर, मेरे गुनाहों की खातर, आपके गुनाहों की खातर सलीब पर जान कुर्बान कर दी। क्योंकि रोमियो 23 बाब उसमें वहां लिखा है कि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। आप और मैं, हम गुनहगार हैं, हम इस सजा के लायक हैं, हम सबको मौत आनी चाहिए। लेकिन मेरे अजीजों, हम उस चोर की तरह नहीं मरना चाहते जो अपने लिए खुद मर गया, लेकिन हम उस चोर की तरह मरना चाहते हैं जिसने अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में दे दी और यीशु मसीह ने अपनी जान देकर उसको साथ वादा कर दिया कि तू मेरे साथ फरदौस में होगा। आज मेरे और आपके पास वक्त है कि हम अपनी जिंदगियां खुदावंद के हाथ में दे दें, अपने गुनाहों को यीशु मसीह के हाथ में दे दें जिसके खून में इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि वो हमारे गुनाहों को धोकर पाक साफ कर सकता है। अगर आप यशायाह नबी की किताब उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत पढ़ें तो हमारे गुनाह जितने मर्जी बुरे हों वो हमारे गुनाहों को धोकर स्नो की तरह साफ शफाफ कर देगा। मेरे अजीजों, आज हमारे पास वक्त है कि हम अपनी जिंदगियां उस चोर की तरह जिसने सलीब पर अपनी जान अपने खुदावंद यीशु अल मसीह के हाथों में दे दी, हम भी अपनी जान, अपने गुनाह, अपनी जिंदगियां खुदावंद के हाथ में दे दें ताकि वो वादा जो उसने चोर के साथ किया वो हमारे साथ भी है। क्योंकि जितने उस पर ईमान लाएंगे उन सबको वो निजात देगा। आज वक्त है, वक्त दूर नहीं है। खुदावंद यीशु अल मसीह जल्द आने वाला है। हमें उसकी सिर्फ ग्रेस चाहिए, हमें सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह चाहिए, हमें सिर्फ उसे देखने की जरूरत है, उसके करीब आने की जरूरत है। जब हम उसके करीब आते हैं तो वो हमारे सारे गुनाहों को माफ करने में कादर है, कुदरत वाला खुदा है। मेरे अजीजों, गुनाह की मजदूरी मौत को न देखें क्योंकि हमारी मौत खुदावंद यीशु मसीह ने ले ली है। अब मेरे साथ और आपके साथ हकीकी वादा है और वो वादे की बुनियाद यही है कि अगर हम अपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, अगर आज हम उसे कबूल करते हैं तो वो हमारे गुनाहों को माफ करने में सच्चा और कादर है। हमारा खुदावंद खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको ईमान की मजबूती बख्शे और तौबा की नौबत बख्शे ताकि हम तौबा करें और उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करें, उसको अपना आका माने, उसको अपना बादशाह माने और अपनी जिंदगियां उसके हाथ में दें। जब वो दोबारा आसमान पर आए तो हम उसके साथ आसमान पर उस चोर की तरह उसके वादा के मुताबिक उसके साथ जाने वाले बन सकें। खुदा हम सबको इस कलाम के वसीला से बहुत सारी बरकत बख्शे। आमीन।